ملک شیخ خالد سلیم ایک ایسا نام جو بنو کی تاریخ میں اپنی ایک پہچان رکھتا ہے۔ آج بنو ہیریٹیج کے فورم پہ ہم اس خاندان کو ازسر نو جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ تقسیم ہند سے پہلے اور بعد میں اس خاندان میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں، کیسے انہوں نے حالات کا سامنا کیا اور آج ان کے موجودہ حالات کیسے ہیں۔ شیخ سلیم صاحب اور ان کے آباء و اجداد کا تعلق سکھ مذہب سے تھا۔ قیام پاکستان سے پہلے یہ ایک خوشحال، متاثر کن اور معزز گھرانہ تھا۔ ملک شیخ سلیم صاحب سن 1912 کو بنو میں پیدا ہوئے۔ شیخ سلیم صاحب کا پرانا نام کنہیا سنگھ تھا۔ آپ کے والد کا نام ملک صوبہ سنگھ تھا اور دادا کا نام ملک شام سنگھ تھا۔ یہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس حویلی کو سن 1903 میں تعمیر کیا۔ شیخ سلیم صاحب ایک کاروباری شخصیت تھے۔ بنو اور مضافات میں ان کا طوطی بولتا تھا۔ بنو میں شیخ سلیم صاحب سلیم تھیٹر کی وجہ سے بھی بہت مشہور تھے، جس کی بنیاد انہوں نے سن 1936 میں رکھی تھی۔ اگر آپ آج کے دور میں دیکھنا چاہیں تو ٹانچی بازار سے آگے سلیم تھیٹر گلی میں یہ سامنے بلڈنگ سینما ہوا کرتا تھا، جس کا ذکر اوم پرکاش صاحب نے اپنے انٹرویو میں بھی کیا تھا۔ تقسیم ہند کے بعد شیخ سلیم صاحب اپنی غیر مسلم بیوی بچوں کے ساتھ ہندوستان چلے گئے، لیکن وہاں کچھ عرصہ رہنے کے بعد وہ واپس آ گئے کیونکہ وہاں ان کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ یہاں پاکستان دوبارہ آنے کے بعد انہوں نے دوسری شادی کا ارادہ کیا، تو ایسے میں ان کی ملاقات میاں والی میں ایک پیر سے ہوئی۔ ان سے متاثر ہو کر شیخ سلیم صاحب یعنی کنہیا سنگھ نے اسلام قبول کر لیا۔ شیخ سلیم صاحب نے اپنے پیر سے درخواست کی کہ اگر آپ میری شادی کسی نیک پرہیزگار عورت سے کروا دیں۔ پیر صاحب نے میاں والی میں شیخ سلیم صاحب کی شادی ایک پرہیزگار مسلمان عورت سے کروا دی۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت بخش دیں کہ شیخ سلیم صاحب جن کا تعلق سکھ مذہب سے تھا ان کو اسلام پر قبول کیا، اور ایسے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 2 حج کیے، اور ویڈیو کے سٹارٹ میں جو آپ نے مسجد دیکھی وہ بھی شیخ سلیم صاحب نے تعمیر کرائی، جس کا نام بھی شیخ سلیم مسجد تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا نام تبدیل کر کے مدنی مسجد رکھ دیا گیا۔ شیخ سلیم صاحب کی مسلم بیوی سے 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ شیخ سلیم صاحب کے بڑے بیٹے کا نام اصغر سلیم ہے اور چھوٹے بیٹے کا نام خالد رشید ہے۔ جب ان کا چھوٹا بیٹا خالد رشید تبلیغی جماعت سے متاثر ہوا تو انہوں نے سلیم تھیٹر
ख़त्म कर दिया। मौजूदा दास चौक शेख सलीम के मामू मलक दास के नाम पर है, जिसका एक बेटा मलक लोका खान था। दास चौक के अक्सर बाला खाने जो हम बनु हेरिटेज पर शाया करते आए हैं, ये इसी ख़ानदान की मालकियत थी। अगर दास चौक से चौक बाज़ार का रुख करें तो दाएं तरफ की 50 से ज़्यादा दुकानें और आसपास के मोहल्लों में कोई 72 घर मलक शेख सलीम साहब की मालकियत में थे। उनकी कोई 4 मुरब्बा से ज़्यादा ज़रई ज़मीन मीताखेल और शमादी कला के हदूद में थी। इस हवेली में ये कमरा शेख सलीम साहब का था। यकीन जाने बनु हेरिटेज पर जब भी मैं ऐसी किसी जगह का विज़िट करता हूँ जहाँ पे ऐसे ख़ानदान रहे हों, ऐसे लोग रहे हों, तो दिल बैठ सा जाता है कि कैसे ये ज़िंदगी गुज़र जाती है, कैसे हम इस फ़ानी दुनिया से चले जाते हैं और हमें अंदाज़ा तक नहीं होता। ये लोग भी हमारी ही तरह खुशहाल, बारोब और मुतासिर ज़िंदगी गुजारा करते थे, लेकिन आज इस दुनिया में नहीं। हवेली का ये रास्ता पिछले दरवाजे की तरफ जाता है, जो कि पीपल गली से होकर निकलता है। किसी दौर में इस हवेली में कई अफराद रहा करते, तो कहीं खुशी, कहीं कहकहे, कहीं हंसी, कहीं मजाक, लेकिन आज अफसोस के साथ इस हवेली में कोई नहीं रहता। हम और आप शायद इस वीडियो को देखकर, इसकी तारीख जानकर लुत्फ़ अंदोज़ हों, लेकिन इस ख़ानदान के लोग हर एक दरवाज़े, हर एक दीवार को महसूस करते होंगे, जिनसे इनकी कई यादें वाबस्ता हैं। शेख सलीम साहब ने बन्नू में एक मिसाली ज़िंदगी गुजारी, ना किसी को तकलीफ़ दी, ना अपनी वजह से किसी को नुकसान पहुंचाया, बल्कि जितना हो सके बन्नू के लोगों को दिली मोहब्बत के साथ अपने पास बनाए रखा। उन्होंने एक मिसाल कायम की कि जिस तरह अपनी मिट्टी से उन्होंने मोहब्बत की और हिंदुस्तान जाने के बाद भी वो मिट्टी, वो खुशबू उनको हिंदुस्तान से पाकिस्तान दोबारा लेकर आई और आखिरी दम तक वो अपनी मिट्टी से, अपने घर से, अपनी हवेली से जुड़े रहे। बन्नू में कई लोगों ने शेख सलीम साहब को डराया, धमकाया कि आपकी जायदादें ले लेंगे, आपकी दुकानें कब्जा कर लेंगे, लेकिन शेख सलीम साहब में ईमान की कुव्वत इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने एक ही जवाब दिया कि मेरा खौफ सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से है। इस हवेली की ऊंचाई
टांची बाजार में मिर्जानी बंगले की ऊंचाई और मिलाद पार्क में मौजूद पानी की टैंकी की ऊंचाई एक जैसी है। सलीम थिएटर में जब किस्मत फिल्म का डायलॉग बोला जाता तो वो इस घर की दीवारों में गूंजता हुआ सुनाई देता, क्योंकि उस वक्त में ना ऊंची बिल्डिंग थे, ना इतना शोर था, बस सुकून और जिंदगी को महसूस करने का मौका था। जब भी मैं इन पुरानी इमारतों को देखता हूँ तो मेरे कानों में अहमद फराज साहब की एक नज़म गूंजती है। देख, माजी के दरीचों को कभी खोला न कर, भागते लम्हों के पीछे इस तरह दौड़ा न कर। ए मेरे सूरज मेरे साए के दरीना रफीक, रास्ते में रोशनी बनकर बिखर जाया न कर। ये भी मुमकिन है तेरी दीवार उधर तेरे ना हो, घर के अंदर बैठकर तो इस तरह रोया न कर। कह लिया कर गाहे गाहे तो कोई अच्छी गजल, महफिल शेर व सुखन से खुद को यूं तन्हा न कर। कह रही है मुझसे मेरे घर की तारीकी फराज, रात हो जाए तो घर से तू कहीं जाया न कर। हवेली का ये हिस्सा सबसे पुराना और दिलकश है, और वो इसलिए कि इस हिस्से के दोनों अतराफ में कमरों के दरवाजे और दरमियान में ये खूबसूरत खिड़की लगाई गई है, जो कि अपने आप में एक मुनफरिद मंजर पेश करती है। इस बरामदे में खड़े होकर जब आप इन रोशनदानों को देखते हैं तो वो अपने आप में एक मुनफरिद मंजर पेश करते हैं। शेख सलीम साहब का ये ख़ानदान आज भी कहीं गुम नहीं हुआ, बल्कि अब भी ये लोग साहिब रसूख हैं और कारोबारी सिलसिले में पेशावर में मुकीम। बन्नू आते जाते हैं और मोहल्ले में रिश्तेदारों से शादी गम इस तरह ही निभाते हैं जैसे वो यहीं मुकीम हो। बन्नू हेरिटेज पर जब भी मैं किसी ख़ानदान की, किसी घर की तारीख, कहानियाँ महफूज कर लेता हूँ तो दिल को एक इत्मीनान पहुँचता है कि मैंने अपनी मिट्टी के लिए, अपनी सरजमीन के लिए कुछ ऐसा किया जो कि आने वाली कई नस्लों को फ़ायदा पहुँचाएगा। शेख सलीम साहब के ख़ानदान के साथ शायद मेरे अपने ज़ाती ताल्लुकात ना हों, लेकिन उनकी तारीख़ जानकर, उनके घर में जाकर मुझे भी ऐसा महसूस होता है जैसे कि मैं भी उन्हीं के घर का कोई फ़र्द हूँ। मैं बज़ाते ख़ुद शेख सलीम साहब की कब्र पर पहुँचा, उनके लिए फातिह ख़्वानी की और अल्लाह ताला से ये दुआ की कि अल्लाह ताला
آپ نے اس شخص کو ہدایت بخشی، تو ہمیں امید ہے کہ آپ اللہ الصمد ہیں، رحیم ہیں، اور شیخ سلیم صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔